पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली. So, we come here as a team of all party, very distinguished members of parliament, my colleagues. They're from various parties. Most of them, for me personally, it's a heavyweight delegation because most of them have served not just as members of parliament, but as important ministers in the government of India, some in very important departments which have influenced policy for various decades. And the whole idea of this entire Operation Sindoor, which you all have all read about, heard about, it was the wishes of the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, that this is an extension and outreach program. Because you read a lot in the social media, some factual things, some exaggerated things. But what really happened in Pahalgam, the truth should be told to the world. So there are 7 groups. Each group has 5 to 7 members of parliament. They have various experts, and we all left on the 23rd and the 24th of May, and the trips, most of us will be back by the 3rd and the 4th of June. So within 10 days, every delegation will go. The outreach program is about 4 to 5 countries. You will try and reach out to as many people as possible, give them facts and figures of what really happened in Pahalgam. And this outreach program is not just to put up a fight against anybody. The fight is not against any individual. It is against terrorism. Because what is the legacy we want to leave our children? Why did you all migrate? Why do we all move? Who leaves their roots? Nobody wants to leave. Ghar koi nahi chhodna chahta. But you have come for a reason generations ahead, and you've made a life here. And we feel so proud that our Indians have come here and contributed to the economy, to good practices here. As a matter of fact, when we met the speaker, precious time that you have taken out to see us, meet us, and greet us. जब सब भारतीय एक छत के नीचे एक साथ हैं, तो ये तो कहना बनता है, भारत माता की जय! भारत माता की जय! मुझसे पहले कहा गया, अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग क्षेत्र के सांसद इस दल में एक साथ आए हैं. हमारे दल, विचारधाराएं, क्षेत्र, भाषाएं सब अलग हो सकती हैं, लेकिन संदेश एक है, और वो संदेश कड़ा और स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म. हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे. कोई आतंकवादी हमला भारत पर करेगा तो बदले में भारत करारा प्रहार करेगा और बार बार करता रहेगा अगर ऐसा होगा तो. मुझे दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिला. अधिकतर लोग ये कहते थे कि हमने भारतीय फिल्में देखी तो सॉफ्ट पावर की बात करते थे, हमारे एक्टर्स की बात, हमारे गानों की बात. दुनिया के बहुत सारे देशों में, इथियोपिया में आके मुझे जो अपनी एक और सॉफ्ट पावर पर गर्व महसूस हुआ. यहां के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर से लेकर किसी भी बड़े दल के नेता से मिले हों, या सांसद से लेकर किसी व्यापारी तक भी मिले हों, सबने कहा है हमें शिक्षा देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय टीचर्स ने और एजुकेशन सिस्टम ने किया है. ये बहुत बड़ा योगदान है आपका. मेरे पिता प्रोफेसर थे. वो जब मुख्यमंत्री भी बन गए उसके बाद भी लोग उनको प्रोफेसर साहब ही कहते थे, क्योंकि उनको लगता था उनके जीवन को शेप करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा. आपके हाथों से ना जाने कितने लीडर बन गए. तो आप लीडर्स के भी लीडर्स हैं, गुरु हैं आप. तो आप ये संदेश बहुत आसान तरीके से बहुत स्पष्ट दे सकते हैं कि भारत जो एक विक्टिम है आतंकवाद का, वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म. फॉर द लास्ट मोर देन 4 decades, lost thousands and thousands of lives in the cross-border terrorism.
And if you look at the past, look at the war of 65, 71 and Kargil. 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, जहां सीधी सीधी लड़ाई हुई, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, हर बार धूल चटाई है। लेकिन उसको पता सीधे से लड़ नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, वो निहत्थे निर्दोष लोगों पर, इनोसेंट पीपल, उन पर इस तरह से अटैक करके जो टूरिस्ट बन के गए थे, छोटी छोटी बच्चियों के आगे, किसी पत्नी के सामने उसके पति को, बहन के सामने उसके भाई को सिर पे गोलियां मार के मार दिया गया। कोई कसूर नहीं था। और जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने क्लेम किया कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, वो पाकिस्तान की लश्कर तैयबा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान को बता भी दिया। 2 वीक्स तक पाकिस्तान ने 14-15 दिन तक कुछ नहीं किया। फिर भारत ने वो किया कि 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को बम धमाकों से मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। अब ये काम तो पाकिस्तान को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वहां तो वही फंडिंग कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही लॉजिस्टिक, वही हैंडलिंग कर रहे हैं, वही हमारी सीमा के अंदर भेज रहे हैं, वही मरवाने का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कहां उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ काम करेगा? भारत ने किया, लेकिन बदले में पाकिस्तान आर्मी ने भारत के निर्दोष लोगों पर अटैक कर दिया।